Good morning, everyone. So, in the last class, we did talk about the adjoint and using adjoint finding out the inverse of a square matrix. So, it is very, very important to know and learn how to find the inverse of a square matrix. And in today's class, we'll be talking about the application of matrices and determinants. And here we'll be considering one of the most important application in solving the given system of linear equations. Initially, say two equations in two variables, and then three equations in three variables. In fact, the same idea is extendable for finding the solutions for four equations in four variables, five equations in five variables, but that is a part of graduation level. So up to 3 by 3 only in our syllabus. So consistency of a system of linear equations. Whether my given system is consistent or not. रिकॉल ये टर्म हम 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाता है? ईदर अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन. सो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आ रहा है वन और मोर का मतलब सीधा इनफाइनाइटली मैनी हो जाएगा. And in case a system of equations have no solution, then that is an inconsistent system. Solution of system of linear equations using inverse of a matrix. तो चेक करिए, ये मेथड के लिए गिवन सिस्टम को हम मैट्रिक्स इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम इनवर्स निकालेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का. दिस पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज एक्चुअली मैट्रिक्स मेथड. तो ये नेम्ड मेथड है बिकॉज देयर आर अदर मेथड्स आल्सो. लाइकवाइज वी हैव वन ऑफ देम इज अ क्रैमर्स रूल, बट दैट इज नॉट इन आवर CBSE syllabus. Check this out. Given a system of two equations in two variables, a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. So find and create a matrix A. वो कहाँ से बनी है? Simply coefficients ले लिए आपने x और y के, a1 b1 a2 b2, और x हो गया x and y. So these are two matrices. और B हो गया C1 and C2, RHS से जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई. अब अगर आप ध्यान से देखें तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो ऊपर ली थी, दैट कैन एक्चुअली बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑन द LHS. जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई आपको करना आता है दो मैट्रिसेस को. व्हेन यू मल्टीप्लाई देम और एलिमेंट वाइज एलिमेंट कंपेयर करेंगे, you will get these two equations only. So actually given system can be expressed as AX is equal to B, where X is unknown, जिसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे using matrix method. Even if it is a case of three equations in three variables, likewise first equation है जैसे a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 and so on. So three equations or three variable, write down the coefficient matrix like this. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट. अगर कोई कोफिशिएंट मिसिंग है, मान लो यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट यहाँ पर 0 हो जाएगा. ये x हो गया और ये मैट्रिक्स B हो गया RHS से.
System can be written as clearly the same way. LHS is a product of A into X, and that is equal to B. So hardly matter is it 2 by 2 or 3 by 3 case. Equations can always be expressed as AX is equal to B. अब A अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ओनली A इनवर्स एग्जिस्ट. याद रखिए दिस इज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. तो अब AX इज इक्वल टू B. आप इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से बोथ द साइड्स. Look at the way I have arranged this. और A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है. तो IX आ गया A इनवर्स B, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वो आंसर सेम रहता है. तो X आ गया A इनवर्स B. दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. बट पेपर में आप जब AX इक्वल टू B और फिर कह देंगे दिस इम्प्लाई X is equal to A inverse B. So that is well accepted in the board examination. No need to show these 3 steps in between. They are just for you to understand. But ultimately क्या हमने simple conclusion निकाला है? AX is equal to B imply X is A inverse B. But at the same time remember ये तभी possible है जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और A इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन ये थी. तो ये तभी होगा व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो. सो दिस मैट्रिक्स इक्वेशन जो है ना ये एक्चुअली मुझे प्रोवाइड करेगी यूनिक सॉल्यूशन. Though we have the homogeneous equations also, though also at the same time we have the methods to get the infinitely many solutions, but they again are not a part of our CBSE curriculum. So हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशंस के ऊपर. ये हमें पता है A is singular when determinant A is equal to 0. अब आप चेक करिए इन केस अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो जाता है तब हमें कैसे पता चलेगा कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना है. कैलकुलेट एडजॉइंट A इनटू B. थोड़ा सा इसको ये ऐसे समझ लो, ये है आप एडजॉइंट A निकालोगे और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद B. इफ दिस वैल्यू दिस प्रोडक्ट is coming out as a zero matrix, तब हम कहेंगे कि the given system has infinitely many solutions. And as per CBSE we stop here. आगे कैसे लिखते हैं infinitely के जनरल एक्सप्रेशन not in syllabus. But अगर अब हमने क्या नोट करा कि adjoint A into B वो नॉन जीरो आ गया है, then we have no solution. बट ये कब चेक करना है? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये, अगर स्टार्टिंग में ही आपने ऑब्जर्व किया कि डिटर्मिनेंट A 0 है, देन इन दैट केस यू नीड टू चेक आउट दिस. इसमें इनफाइनाइटली मैनी कहेंगे, और अगर ये आ गया नॉन जीरो देन नो सॉल्यूशन. लर्न दिस एज अ स्टैंडर्ड रूल. एनसीईआरटी में सिर्फ एक सिंपल पैराग्राफ में ये चीज बता दी गई है. आई हैव जॉटेड डाउन इन अ प्रॉपर टेबुलर मैनर. क्विकली चेक दिस आउट. समटाइम्स यू मे प्रेफर टू टेक certain screenshots at the same time. वैसे आई शेयर द होल PDF, बट वर्किंग रूल में या कुछ फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट टेबल है, आप उसे अलग से सेव कर सकते हैं. Check out this example. A, X and B, ये बीच में कॉमा है यहाँ और यहाँ.
ठीक है, ये आपने गिवन सिस्टम से कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया 3 - 4 एंड 4 एंड +2। अब इस केस में ठीक है, चेक करते हैं यूनिक है या कैसे। यस, डिटर्मिनेंट ए निकाला, वो नॉन जीरो आया है, हेंस कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया विद यूनिक सॉल्यूशन। So it all depends on the determinant of the given square matrix जो बनेगी। Again in this case, can I have the answer quickly? कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये सब लिख लिया, डिटर्मिनेंट ए निकाला, और this time we find that determinant is actually coming out as 0। अभी भी हम कंक्लूजन नहीं बता सकते। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाता है देन क्या करना है, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालना है। तो आई एम श्योर नाउ एवरीवन नो हाउ टू राइट द एडजॉइंट ऑफ ए। क्या था एडजॉइंट ए में, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो। ये देखो, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दिया एंड इन दोनों के साइन चेंज कर दो, दैट्स इट। सो आई विल डायरेक्टली गेट द एडजॉइंट। अब एडजॉइंट आ गया, find this product, this product is again coming out equal to 0। ये आप चेक कर लीजिए, ये प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद 0 आ गया। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द रूल, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो और एडजॉइंट ए इंटू बी वो भी 0 आ जाए, दिस इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। एंड वी स्टॉप हियर, इसके बाद आगे नहीं कुछ भी रहेगा। quickly check this out। Now what happened in this case, डिटर्मिनेंट ए तो 0 था बट एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला और वो आपका नॉन जीरो आया है। तो वी हैव अ सिंपल कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। तो रिमेंबर द रूल, अप्लाई इट, इजीली कर सकते हैं। Based on this, we have our NCERT exercise 4.6। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करना है। We can go through them quickly. Check this out. Coefficient matrix, determinant non-zero। If the determinant is non-zero, तब तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, consistent with unique solution। Next, determinant है नॉन जीरो है, consistent with unique solution। ये थोड़ा और जल्दी करते हैं, ax is b। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल लिया, नॉन जीरो, हेंस नो सॉल्यूशन। ए बी सी किसी भी फॉर्म में आई हार्डली मैटर। ये देखिए मैट्रिक्स ए है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बन गया, डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो आया है। इफ द डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन। थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल,
यहाँ आप चेक करो सेकंड इक्वेशन जैसे है, यहाँ x का कॉफिशिएंट मिसिंग है, इसीलिए 0 × x लिख दिया। और ऐसे थर्ड इक्वेशन में z का कॉफिशिएंट। राइट डाउन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, गेट इट्स डिटर्मिनेंट, 0 आ रहा है। अगर अब डिटर्मिनेंट 0 है मींस A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो अब मुझे जॉइंट A इंटू B निकालना पड़ेगा। Now this is calculative. Remember, if I have this matrix A with me, अब how I am going to find its adjoint? वो complete method होता है ना, कोफैक्टर्स से लिखते हैं हम। ये मेरे आ गए कोफैक्टर्स। I will not repeat how to find out the cofactors. We already have discussed. Cofactors मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिए और इसका ट्रांसपोज कर दिया। रिमेंबर द डेफिनेशन, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। और अब मैं एडजॉइंट ए इंटू बी निकालूंगा, विच इज क्लियरली नॉन जीरो। सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? डिटर्मिनेंट ए जीरो था बट ये नॉन जीरो है, इनकंसिस्टेंट हो गया विद नो सॉल्यूशन। Any doubt to anyone up to this step? Use chat box, use hand raise option, use mic to unmute and speak, but थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखिए। मैं अपने को अकेले नहीं पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में। कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कहीं नहीं अब इस क्वेश्चन में कहा कि आपको सॉल्व करना है, उसे कंसिस्टेंसी के लिए तो क्विकली आई विल गो। नॉन जीरो आ गया, सिंपली यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इट्स अ नेम्ड मेथड, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो नेम्ड मेथड है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द, इनसे आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स और वही लिख लिया, ए एक्स एंड बी, ये कॉमा आएगा बीच में। गिवन सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, बट इससे डायरेक्टली मैं ये कंक्लूड नहीं करूंगा। पहले अब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, और क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया है, दिस इंप्लाई ए इनवर्स एग्जिस्ट, फॉलोड बाय फाइंडिंग आउट एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि याद करिए इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ए इनवर्स का, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस आपने ये डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया था और ये एडजॉइंट है, ये आ गया ए इनवर्स। अब x कितना था? ए इनवर्स बी। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, ए इनवर्स की वैल्यू रख दिया, और b क्या था? ये स्टार्टिंग में ही हमने जजमेंट कर लिया था बी मैट्रिक्स के बारे में। मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, इट्स अ नॉर्मल प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो सिंपल कंपैरिजन गिव मी द रिक्वायर्ड आंसर, x as 2 and y as -3।
चेक दिस आउट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल अभी हमने लिया है। मैट्रिक्स मेथड पेपर में एक्सपेक्ट करो 3/3 कैन मूव अहेड, और 3/3 को सीखेंगे। नाउ योर टर्न, आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes। डू नॉट अप्लाई एनी अदर मेथड यू हैव लर्न इन 10th क्लास। अब सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से प्लीज करके देखिए इसे। आई एम वेटिंग। I have to believe that everyone is working. Okay, लविश से सिर्फ आंसर आता है नॉर्मली। लेट मी वेट, और कोई अगर आंसर बताए और ये ठीक है या गलत है। डिटर्मिनेंट है 11, जॉइंट ए लिख लिया और अप्लाई किया फार्मूला। ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू ए जॉइंट ए। सब्स्टिट्यूट किया, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखना, आपको इसे 11 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। मतलब इसको 4/11, 1/11 ऐसे मत करना। क्यों, वो भी समझ आ जाएगा। तो ए इनवर्स है, ये इंटू बी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। जनरली क्या होता है, वो 11 के मल्टीपल आ जाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, अलग बात है, बट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अंदर वाला नंबर जब यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा मैट्रिसेस को, वो 11 का मल्टीपल से आ जाता। देन इन दैट केस कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। सो क्लियरली x minus 5/11 and y is 12/11। ठीक है लविश, अनन्या चेक करो कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये y नेगेटिव 1/11 नहीं आ रहा है। चेक दिस आउट। अनदर वेरी सिंपल को 2/2 का क्विकली देखिए। नॉन जीरो, hence A inverse exist। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही तरह की चीजें जा रही हैं, चेक कर सकते हैं आप। गेन 2/2, तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप देख लेना डायरेक्टली क्विकली, बस आई गो थ्रू इट। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशंस आपके इंटीजर्स में आ रहे हैं, बट दैट इज नो वे एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। जैसे पिछले क्वेश्चंस में देख लिया ना हमें कि रैशनल सॉल्यूशन भी आ सकता है।
अब यहां से मेन क्वेश्चन आपके जो 5 मार्कर एक्सपेक्ट करेंगे बोर्ड में वो स्टार्ट होता है. सो चेक आउट दिस क्वेश्चन केयरफुली. एवरीवन प्लीज बी फोकस्ड. 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स आपको गिवन है और सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है. कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया. ये x है और ये b हो गया. मेक इट श्योर जो b लिख रहे हैं उसमें RHS में कॉन्स्टेंट्स लेकर आ रहे हैं इक्वेशंस में. डिटर्मिनेंट a वैसे पहले निकालना है आपको. ये नॉर्मल. चलो डिटर्मिनेंट निकाला. 34 आ गया. नॉन जीरो है. हेंस a इनवर्स एग्जिस्ट. अब मेन हमें क्या करना है, a इनवर्स निकालना है और उसके लिए मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ a. तो ये मेरे पास a है. कोफैक्टर्स लिख लिए. रिकॉल दिस क्विकली. कोई भी एक इनमें से रैंडमली पिक करके आप अपना वेरीफाई कर लो कि आपको याद है ना कि हाउ टू फाइंड ए कोफैक्टर. कोफैक्टर्स ये रहे ऑल टुगेदर. मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा. ट्रांसपोज कर दिया. मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं और यहीं से सारा आंसर सब कुछ गलत हो जाएगा. तो मेक दिस स्टेप इन योर माइंड क्लियरली नोटेड. फार्मूला a इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a. डिटर्मिनेंट a हम निकाल चुके थे 34. तो ये आ गया a इनवर्स. एज मेंशन 34 से डिवाइड मत करना सारी वैल्यूज को. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट अर्लियर. अब x था a इनवर्स b. मल्टीप्लाई कर दीजिए मैट्रिसेस को. कीपिंग 1 बाय 34 आउटसाइड ओनली. यू विल फाइंड जो अब अंदर वैल्यूज आई हैं. यस लविश का मैंने देखा आंसर आ चुका है. ओके. सो 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 बिल्कुल ठीक है आंसर आपका. कंपेयर किया. योर रिक्वायर्ड आंसर. So systematic approach to follow and you can easily get the values of x, y and z. Presentation is equally important. Please do remember this. Check out this question, the last question for the day, and we can move on very quickly. Given system a, x and b लिख दिए. डिटर्मिनेंट a निकालना है सबसे पहले. 10 आ गया. नॉन जीरो. हेंस a इनवर्स एग्जिस्ट. Now to find a inverse, कोफैक्टर्स निकाल लिए. कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाया एंड इसका ट्रांसपोज लिया टू गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स. ए इनवर्स फार्मूला में पुट किया. डिटर्मिनेंट ए हम 10 निकाल चुके थे.
ये आ चुका है और x है a इनवर्स b, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड योर रिक्वायर्ड आंसर. I hope this is clear to all of you. Can I have your response in a chat box? Y या N, and then you can leave the meeting. Okay, ठीक है. This way I'm also checking are you present or you are not here. Everyone need to write down. Okay. आप नो कहोगे कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन. चलिए ठीक है. ओके ठीक है.